All right, so now we will see thermodynamic relations. First of all, you should ask yourself before jumping into this topic, what is the motivation of reading this particular topic in this chapter? Why we are going to do all that complicated mathematics, you know? So, what is the requirement of all these things? So, the first thing you should ask yourself, what is the motivation? Motivation. ठीक है. We know that we have we have a thermodynamic system, then we need a number of properties, number of macroscopic variable that defines, that describes that system, right? Okay, so can you list me some numbers, some of those macroscopic properties of the system, like pressure, temperature, volume, heat capacity, internal energy, entropy, and so on, right? We are having uh, these kind of properties with that system. But now ask yourself, if you are in a lab, you are having a gas in a chamber, or you are having a gas piston system, uh, what what are the properties of that system you can measure in the lab? Just think about this. You can measure temperature with thermometer, of course. You can measure volume by with the volume of the container in the gases in which the gas is filled, or the liquid, or the whatever. Okay, so you can measure pressure also. Fine. You can measure compressibility also, right? Heat capacity also you can measure. These by the way, these are the experiments these are the experiments in your practical examinations. If you have labs where the thermodynamic experiments are being run. Okay, so the thing is that there are certain properties of the system, like internal energy and entropy. These two properties you can't measure in the lab. Okay, but these are the properties of the system, and these are the very important properties. We want to measure them. How to measure them? Now, we can't directly measure them, so what we will do, we will find a mathematical relations or mathematical equations. With the help of those equation, what will happen that the properties that are measurable in the lab, they will be related with the properties that cannot be measured in the lab. So once you measure the properties that are measurable, using those values of the property, you can measure the other properties also. So this is the motivation behind the reading this topic, rather, thermodynamic relations. Okay, so whatever I have said, let me write in the words also. Okay, um, since a thermodynamic system possesses a thermodynamic system already possesses a number of properties that describe the system, such as pressure. Let me okay, write it fully. Pressure, volume, temperature, internal energy, entropy, heat capacity, and so on. Okay, we know that
a system is described in terms of these property of the system that are called macroscopic variable as well. Okay, now now uh, uh, one can measure or determine pressure, volume, temperature, and heat capacity in the lab in a lab but internal energy and entropy are not measurable in the lab. So this is where the problem occurs. But we can relate but if we can relate internal energy and entropy with the measurable properties. Measurable properties P, V, T, C, etc. Okay, once we are able to do this, to relate the unmeasurable property in the lab with the measurable property in the lab, then our problem is solved. And this is done by, or this relations are derived by fundamental laws of thermodynamics. Fundamental laws of thermodynamics called thermodynamic relations. Okay, so this is why we read it. This is why this particular topic is there in your chapter. So now what is thermodynamic relations? इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम वैसे. Mathematically rigorous in the sense that is derived from very fine logics and rules. A mathematically rigorous equation that establishes a necessary functional dependence among the macroscopic state variables. Or one more thing, all the variables here are used state variables because state variable का ही function होता है, right? We don't have any functional form of path dependent variables. वो हम पहले बात कर चुके हैं among the state variable of system. ठीक है.
So what it is saying? It is saying that it is a mathematically rigorous relation equations that establishes a necessary functional dependence among the macroscopic state variables. That यही मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स जो हम ऊपर बात कर रहे थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी एट्सेट्रा. और इसको और अगर आप थोड़ा सा बॉयल डाउन करके लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट इन दिस वे. You can write that thermodynamic relations are essentially a mathematical bridge. ठीक है, मैथमेटिकल ब्रिज को, और वो ब्रिज कौन कौन से एंड्स को जोड़ता है? मेजरेबल और इनमेजरेबल क्वांटिटी इन द लैब. मैथमेटिकल ब्रिज, इसको ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है. अब इन थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में बहुत पर्टिकुलर एक खास सिस्टम को जब हम अज्यूम करते हैं, पीवीटी सिस्टम इसको बोलते हैं. पीवीटी सिस्टम जहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर मेन वेरिएबल्स हैं उस सिस्टम को दोहराने, उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए. तो वहाँ पर जो इक्वेशंस, जो रिलेशंस आते हैं उसको हम मैक्सवेल्स रिलेशंस बोलते हैं. दैट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशंस. मतलब थर्मोडायनेमिक रिलेशंस आर ए बिगर सेट. उसमें से एक पर्टिकुलर सिस्टम को लेंगे अगर हम, जहाँ पर और उस सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे कि कैसे कैसे सिस्टम है, और उस सिस्टम को लेने के बाद वहाँ पर जो रिलेशंस काम करेंगे उसको हम मैक्सवेल रिलेशंस बोलते हैं. और वो पर्टिकुलर ही उस खास सिस्टम के लिए ही वैलिड होंगी, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होंगी. बट बात ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड द मेन क्रक्स ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर. फॉर एग्जाम्पल, if I try to give you one example कि कैसे ये ब्रिज हो रहा है गैप. ओके, सो द थिंग इज दैट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ for a simple homogeneous systems, for a simple homogeneous system that is solid, liquid or gas. ये homogeneous है ना. ओके, मैक्सवेल, वही मैक्सवेल है ये जो जिसका तुमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ था, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन. मैक्सवेल derived the relations by combining the first and second law of thermodynamics. ठीक है. ध्यान रखना ये इसी चीज़ के लिए वैलिड है, फॉर ए सिंपल होमोजेनियस सिस्टम के लिए. द मैक्सवेल रिलेशंस आर वैलिड फॉर दीज पर्टिकुलर सिस्टम्स. तो हम उनको डिराइव करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन देना चाह रहा हूँ कि वन ऑफ द मैक्सवेल रिलेशंस आर इज दिस del S by del V at constant temperature is equal to del P by del T at constant volume. ठीक है. अब if you see RHS को अगर तुम देखोगे, can you see in RHS? You see RHS पे क्या लिखा हुआ है? del P by del T लिखा हुआ है, right? So you can measure change in this. Del P means change in pressure, del T means change in temperature. So these two quantities can be measured in the lab. Okay, but
this thing cannot measure in the lab because you don't know how to measure entropy or change in entropy in the lab. You don't know it. Okay, so using this relation you can find this thing. Okay, this is how this relation is bridging the measurable quantity to unmeasurable quantity in the lab. Okay, ये मैं एक समझाना चाह रहा था पूरा यहाँ तक जो ये लिखा हुआ है ऊपर का पूरा जो मोटिवेशन प्लस थर्मोडायनेमिक रिलेशंस का, ये यहाँ पर उसका पूरा अर्थ ये था कि हम क्यों करना चाह रहे हैं सब कुछ. आई होप थिंग्स आर क्लियर. और इवन अगर कोई दूसरा रिलेशन भी लोगे अगर आप 4 के 4 जो रिलेशन है सबके सब रिलेशन आर गिविंग द सेम थिंग, minus del p by del s by v. So if you see here, this LHS is measurable, the this thing is measurable in the lab, but this can't, because you don't know how to find the how to how to diagnose this del s कितना चेंज हुआ हमें पता नहीं है. लेकिन अगर तुम्हें ये पता है तो तुम इसको इक्वल पुट कर सकते हो और यहाँ से del s निकाल सकते हो. ठीक है, तो ऑल द 4 मैक्सवेल रिलेशंस आर लाइक दिस. ठीक है, फाइन. नाउ लेट्स डिराइव देम, हाउ टू डिराइव द मैक्सवेल्स इक्वेशंस, सॉरी मैक्सवेल रिलेशंस. ओके, ध्यान देना, मैक्सवेल रिलेशंस. Fine, we are talking about a particular system again and I am emphasizing on this point कि भाई हम एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात कर रहे हो, वहीं पर ही मैक्सवेल इक्वेशंस लागू होंगी. पर्टिकुलर सिस्टम मतलब यहाँ पर होमोजेनियस सिस्टम. अब होमोजेनियस सिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड लिक्विड और गैस में से. सो फॉर अ PVT सिस्टम undergoing an infinitesimal रिवर्सिबल प्रोसेस. और हमेशा हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, ये तो हमें पहले ही पता है. ठीक है, PVT सिस्टम जहाँ पर ये तीन वेरिएबल्स, 3 स्टेट वेरिएबल्स आर इनफ टू डिस्क्राइब दैट सिस्टम. तो उस सिस्टम के लिए अगर कोई इन्फिनिटेसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, वी नो दैट dq इक्वल्स du प्लस pdv. But we also write, this is first law. Also we know that dq equals tds from second law for reversible process. ध्यान देना, तभी यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया हुआ है. सेकेंड लॉ, combining both gives tds equals du plus pdv. okay, और du equals tds minus pdv. so this is called combined form of first and second law, or you can also call this thing also the combined law, combined form of first and second law. आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी. तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर होती है कि PVT सिस्टम का क्या मतलब है. PVT सिस्टम का मतलब ये है कि जहाँ पर वर्क डन जो है वो ओनली मैकेनिकल वर्क डन होगा, PdV. अगर कोई मैग्नेटिक सिस्टम हो सपोज, इन दैट केस जो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्क डन निकल के आ जाएगा वो हो सकता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और सॉरी HDM. दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज़ द मैग्नेटाइजेशन हो जाता. तो वहाँ पर वर्क डन ये नहीं होता, ये होता. तो उस केस में ये सिस्टम PdV सिस्टम नहीं कराता.
लेकिन जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है हमारे लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा का सारा वर्क डन पीडीवी के थ्रू ही गवर्न हुआ है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पीबीटी सिस्टम. Okay, I hope things are getting smoother. Now, since we know that for PVT system, there are only two independent variables that can define any equilibrium states. So, for using that, consider USV, right, to be function of two independent variables. Let's call them x and y. सो क्यों हमने USV लिया है? क्योंकि हमने इनका डिफरेंशियल चेंज निकालना है और du का डिफरेंशियल चेंज du होगा, s का ds होगा, v का dv होगा. और जब वो एक बार निकल जाएगा तो वी विल पुट देम इनटू इक्वेशन नंबर 1. आई हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग, सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट, है ना. तो सिंस u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y, सो du ये हो जाएगा. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू हम du को ऐसे लिख सकते हैं, ds को ऐसे लिख सकते हैं और dv को ऐसे लिख सकते हैं. नाउ इफ़ यू पुट दीज थ्री इन द इक्वेशन, आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स. ये थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं कर रहा हूँ पहले से ही एडवांस में, ताकि बाद में मतलब चीज़ें जल्दी हो सके. जहाँ पर मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी है वो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर सिंपल पुट करना है चीज़ों को वहाँ पे मैं सीधे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें लंबी ना जाए, वीडियो लंबी ना जाए. तो अगर इन तीनों को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा. उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स वाले dx टर्म्स को साथ में लिया है, dx को साथ में ले लिया है यहाँ पर, dy को साथ में ले लिया है यहाँ पर, ठीक है. तो इनको साथ में लेने के बाद हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में की थी कि सिंस x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो अगर हम एक को वेरी करेंगे तो दूसरे वाले वेरिएबल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x को वेरी करेंगे तो y में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y में वेरिएशन करेंगे तो x में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. सो अगर dx 0 है और dy इज़ नॉट 0, सो ऑफकोर्स ये वाली टर्म तो वैनिश हो जाएगी. और इस वाले टर्म में सिंस dy इज़ नॉट 0 तो ये 0 होना पड़ेगा, राइट. द टर्म इन द ब्रैकेट हैज़ टू बी 0. फाइन. सो दिस इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो आएगा del u बाई del y एट कॉन्स्टेंट x, दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग. ये टर्म अगर RHS में जाएगी तो ये ऐसे बन जाएगी, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाएगा. Let's call it equation number 2. In the similar way, if you take dx is not 0 but dy is 0, in that case you will get this thing will vanish, but dx is not 0, so this thing has to be 0. The term in the bracket, in the square bracket has to be 0. तो यहाँ पर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म आ जाएगा. यू कैन डू इट, सी इट एज इट इज़. तो अब यहाँ से जो del u बाई del y एट कॉन्स्टेंट x आएगा वो हमारा ये आ जाएगा, ठीक, ऐसे आ जाएगा. नाउ यू नो दैट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है. नाउ वी नो u इज a state function. u is a state function, therefore जो हमारा du होगा, du is exact differential,
and if du is exact differential, it means that del u by del x at constant y, and now if you differentiate it with respect to y, or if you do it in this way, ये इक्वल होगा. यानी कि जो ऑर्डरिंग है, पहले x के रेस्पेक्ट में करो, फिर y के रेस्पेक्ट में करो, या फिर पहले y के साथ करो फिर x के साथ करो, दिस ऑर्डरिंग डजंट मैटर. ओके, सो वी नो दीज टू थिंग्स, this thing about du. Now if you see, you have this thing del u by del y at constant x, del u by del y at constant x, and del u by del y, okay, wait, what's the wrong, yeah, this thing is del u by del x at constant y na. So ये dy कॉमन ले लिया था, ये थोड़ी मिस्टेक्स हैं क्योंकि मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट इफ़ यू डू इट केयरफुली you should not get these mistakes. Okay. So you just have to calculate this from with the help of this, क्योंकि ये अंदर वाला जो टर्म है वो ऑलरेडी भी है, वी नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड यू हैव दिस थिंग हेयर, just differentiate with respect to x. So if you do these two differentiation and plug equate them, क्योंकि ये दोनों equal हैं, तो you will get the relation like this. Okay, let me do it again. तो ये मेरा LHS का पार्ट है, इसको मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, y के रिस्पेक्ट में, ठीक. और जो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट x है वो ये है, इसको मैं यहाँ पे प्लग कर दूंगा like this. So if you see this here, you need to use the product rule, क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है. तो डेल टी बाई डेल वाई है ना, डेल टी बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स और दूसरा फंक्शन एज इट इज़ plus t is constant, then del by del y and del y. Okay, you can write it in this way, del 2s by del y del x, ऐसे लिख सकते हैं उसको. इसका इस पर जो ऑपरेशन होगा वो ऐसा दिखेगा, 2 का मतलब दोबारा डिफ्रेंशिएट किया हमने, माइनस अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये जो है ये इस पे से ऑपरेट होगा तो दो फंक्शन पे ऑपरेट होगा. तो डेल पी बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई माइनस पी एज इट इज़, और उसका डबल डेरिवेटिव ऐसे आ जाएगा डेल वाई डेल एक्स. ठीक है, ये मेरा LHS आया, इसको मैं LHS कर देता हूँ. Similarly, if you see the RHS और ध्यान रखना, ये जो x आ रहा है यहाँ पर ना, ये वाला x आ रहा है और ये वाला x आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब हमने इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, तो x कांस्टेंट है, ऐसे है x, ये ऐसे है y, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर छोटी सी चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो अगर आप RHS को निकालोगे तो डेल टी बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और दूसरा वाला टर्म तो एज इट इज़ हो जाएगा, प्लस टी डेल 2s डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल पी बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई डेल वी बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स माइनस p del 2v del x del y. और सिंस these two terms are equal, like because LHS और RHS हैं तो इक्वल होना पड़ेगा इन दोनों को, तो you just write them. छोटा हो गया, this is equal to this. Okay, now we know that
again let me write, since entropy and volume are state function, implies that del 2s of del x del y is equal to del 2s of del y del x. ये जो कंडीशन है ना ये वाली, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ del 2u del y del x, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ del 2u del x del y, यानी कि पहले y में फिर x में, पहले x में फिर y में. ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है. तो इसी तरीके से जो del 2v है पहले y में फिर x में, ये इक्वल होगा पहले y में फिर x में. तो ये दोनों इक्वल होंगे तो LHS और RHS में दोनों हैं तो ये कट जाएंगे. कैसे कट जाएंगे, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी. सिमिलरली ये वाली टर्म इस वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सेम फैक्टर मल्टीप्लाइड है ना, माइनस पी टी टी. सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ नाउ? देयरफॉर वी हैव del t by del y at constant x, del s by del x at constant y, minus del p by del y at constant x, del v by del x at constant y. This is equal to del t by del x at constant y, del s by del y at constant x, minus del p by del x at constant y equal to del v by del y at constant x. This is called general expression for, this is general express for Maxwell's thermodynamic relations. Okay. So now x and y can be any pair from P V S T. ठीक है, इन चारों में से कुछ भी ये हो सकता है, एक्स एंड वाई कुछ भी हो सकता है इन चारों में से, क्योंकि ये जो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पर, एस टी पी वी, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है. तो मैथमेटिक्स में यू मस्ट हैव लर्न दिस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो मेरे पास टोटल 4 हैं ऑप्शंस टू चूज. 4 में से 2 वेरिएबल चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4c2 वेज, दैट इज 4c2 पेयर्स, और दिस इज इक्वल टू 6 पेयर्स. 6 पेयर्स, हर एक पेयर अपने आप में एक इक्वेशन देगा, रिलेशन देगा. तो मेरे पास 6 मैक्सवेल रिलेशंस हो जाएंगे. नहीं या हाँ, लेकिन तो हमने तो देखा कि 4 ही मैक्सवेल रिलेशंस थे बुक में. यस, बट द थिंग इज़ दैट हम 6 में से उन्हीं 4 को लेते हैं जो ये इस पर्पज़ को पूरा करते हैं. कौन सा पर्पज़, जो हमारा मोटिवेशन था. मोटिवेशन क्या था हमारा, कि जो ब्रिज की तरह काम करे, मैथमेटिकल ब्रिज की तरह काम करे. जब अनमेजरेबल चीज़, अनमेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैच करती है, मैच नहीं, रिलेट हो जाती है, तो उस वाले ही रिलेशंस को मैक्सवेल रिलेशंस कहा जाता है. और उसको याद रखने का तरीका ये है कि कौन से पेयर में, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल 6 कौन कौन से पेयर हो सकते हैं. देखो, पी वी ले सकता हूँ मैं, एक्स और वाई की जो पॉसिबल नंबर ऑफ वो हैं
कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे ले सकता हूँ मैं, एक्स की जगह पे पी ले लूँ और बी की जगह पे मैं वाई ले लूँ, पहला ये हो सकता है। फिर मैं ले सकता हूँ पी एस या एस पी एस या एस पी की बात है। फिर मैं ले सकता हूँ तुम्हारा पी टी, ओके। फिर मैं ले सकता हूँ वी एस, फिर मैं ले सकता हूँ वी टी, है ना, देन एस टी, ठीक। ये तरीके, 6 तरीके ये हैं। अगर तुम एक्स की जगह पे पी लो, वी की जगह पे वी लो, ये एक्स वाई, या फिर उल्टा ले लो, वाई की जगह पे ये ले लो, इसकी जगह पे एक्स ले लो, क्योंकि वो एक ही रिलेशन देगा, हम देख सकते हैं। ये मतलब पी वी और वी पी एक ही चीज़ देगा। तो हमारे पास 6 पेयर्स है, 6 पेयर्स में से 4 पेयर्स ही हमें मैक्सवेल रिलेशंस देती हैं, और कौन सी वाली, तो उसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वो ये है कि उसको दैट कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली आई थिंक आई हैव नॉट टेल यू अबाउट दैट थिंग मे बी, ओके। सो let me tell you about that thing. There is something called mechanical variable. तो यहाँ पर पीवीटी सिस्टम में प्रेशर और वॉल्यूम को मैकेनिकल वेरिएबल बोलते हैं, और थर्मल वेरिएबल टेम्परेचर और एंट्रोपी को थर्मल वेरिएबल के तौर में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ 4 में से 2 मैकेनिकल हैं और 2 थर्मल वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम अगर इन पेयर में जो दो एंट्रीज हैं, अगर एक एंट्रीज मैकेनिकल से आई और एक एंट्री थर्मल से आई, वो ही हमें मैक्सवेल रिलेशन देंगी, ओके। सो अ पेयर which has one mechanical variable and one thermal variable gives a Maxwell relation. इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा पेयर जिसमें दोनों के दोनों मैकेनिकल हैं या फिर दोनों के दोनों थर्मल हैं, वो मैक्सवेल इक्वेशन नहीं देगी, वो एक रिलेशन देगी बट वो मैक्सवेल रिलेशन नहीं देगी। तो इसका मतलब जो ये है, ये वाला और ये वाला पेयर हमें मैक्सवेल रिलेशन नहीं देगा, क्योंकि ये जो पी वी है इसमें दोनों के दोनों वेरिएबल्स मैकेनिकल हैं, और टी एस यानी कि एस टी में दोनों के दोनों वेरिएबल मेरे थर्मल हैं, तो वो मैक्सवेल रिलेशन नहीं होगा, वो एक जनरल रिलेशन होगा। दैट इज वी कैन यूज दैट रिलेशन ऑल्सो समवेयर, बट दैट इज नॉट कन्वेंशनली कॉल्ड इन द बुक्स, इन द लिटरेचर। पीपल नॉट कॉल दैट this thing, Maxwell relations. Okay, so let's start with this one now. Okay, इससे स्टार्ट करते हैं कि जब मेरा x p है और y मेरा ऐसे है, प्रेशर और एंट्रोपी। सो लेट्स यूज इट। तो पहला पेयर मुझे पहला मैक्सवेल रिलेशन देगा। तो इफ़ यू पुट x इक्वल्स p, y इक्वल्स s, x इक्वल p, y इक्वल्स s, y इक्वल s, p s p, यहाँ पर भी s p s p s p s, सॉरी ये पी एस होगा ना, पी एस पी एस, ओके गुड। सो ऑफकोर्स डेल एस बाई डेल, तो अगर डेल एस बाई डेल एस 1 हो गया, डेल पी बाई डेल पी 1 हो गया, लेकिन अगर पी और एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो एस का पी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और पी का एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0, ये टर्म 0,
यहाँ से ये 1 और ये 1, तो क्या निकल के आया, del T by del P at constant entropy minus del V by del S at constant pressure is equal to 0. तो यानी कि del T by del P at constant entropy is equal to del V by del S at constant pressure. This is the first Maxwell relations. ओके अगर मैंने जस्ट इनको उलट कर दिया होता तो देखते हैं तब क्या, तब भी यही आता. लेट्स सी, x इक्वल टू एस, वाई इक्वल टू पी. ठीक है, तो हम जो जनरल फॉर्म है उसको लिखना चाहेंगे एक बार. तो x की जगह पे तुम ले लो s, x की जगह पे s, y की जगह पे p, y की जगह पे p, x y की जगह पे p, p x s, this is s, this is p, this is s, this is s, this is p, s, s, p, p. ओके तो अब यहाँ पर जो LHS है वो 1 हो गया और ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ से ये माइनस ये इक्वल टू 0. अगेन इट विल गिव मी del T by del P एट कॉन्स्टेंट S इज इक्वल टू del S by del P. तो मतलब आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको ये मान लो या इसको ये मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ गिव सेम आंसर. ओके ये पहला पेयर का चॉइस हो गया. सिमिलरली अगर मैं सेकेंड पेयर का चॉइस लूँ, लेट्स टेक इट एज x इक्वल टू एस, वाई इक्वल टू वी, देन now you will check it out. It will come out as del T by del V at constant entropy is equal to minus of del P by del S at constant V. The next choice of the pair, देखो यहाँ पर एक थर्मल वेरिएबल है, एक मैकेनिकल वेरिएबल है. इसको याद रखने का तरीका ये है, थर्मल वेरिएबल का मतलब मैकेनिकल का मतलब जहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा हो, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है. प्रेशर में लगाओगे तो मूवमेंट होता है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मूवमेंट होता है, या घटाओगे तो मूवमेंट होता है. टेम्परेचर थर्मल से रिलेटेड है, एंट्रोपी भी थर्मल से रिलेटेड है, एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी. तो इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको. तो तीसरा पेयर भी हमें एक वेरिएबल हमें थर्मल से लेना पड़ेगा, लेट्स टेक इट टी, और एक वेरिएबल मुझे मैकेनिकल से लेना पड़ेगा. तो ये मुझे देगा del S by del V at a constant temperature is equal to del P by del T at constant volume. और एक और बचता है हमारा चौथा, अगर मैं एक थर्मल ले लूँ दैट इज़ T और दूसरा P. सो दिस विल गिव मी del S by del P at constant T equals minus का del V by del T at constant P. So these are the 4 famous Maxwell thermodynamic relations that are valid for homogeneous system. But remember, okay, let me write this thing. These are the 4 Maxwell's fundamental thermodynamic relations. पहली बात, valid for any system provided homogeneous. So या तो वो पूरी तरह सॉलिड हो या फिर लिक्विड या फिर गैस हो. तो मीन्स it works for ideal as well as real gases too, as well as real gases. इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है भाई कि हमें आइडियल गैस के लिए इसको यूज़ कर सकते. नो, बस सिस्टम मेरा होमोजीनियस होना चाहिए
और पीवीटी सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के थ्रू हम सिस्टम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो कि हमारा पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स, हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा का पूरा पूरा सेमेस्टर जो है पीवीटी सिस्टम पे ही गुजरा हुआ है। तो यानी कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं रियल गैसेस के लिए भी, बल्कि हम करेंगे भी यूज़, मे बी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन यस, अगर हम बाकी दो पेयर यूज़ कर लें जहाँ पर दोनों वेरिएबल्स मैकेनिकल हो, लेट सपोज, तो इसको भी अगर तुम देखोगे तो यू कैन चेक कि ये आएगा, एंड चेक इट आउट। हाँ, ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है इसकी। ये आ जाएगा इक्वल टू का साइन जी, RHS में यू डोंट गेट जीरो नाउ। और छठा, जब दोनों के दोनों वेरिएबल थर्मल वेरिएबल, सो डेल पी बाई डेल टी, इस केस में ये आ जाएगा डेल वी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर del V by del T at constant entropy equal to 1. So these are the rest of the rest of the Maxwell relations out of 6. So this is how all the 6 Maxwell relations are, not 6 Maxwell, 4 Maxwell relations and 2 extra. So now if you want to take a physical intuition or some feeling of these 4 Maxwell relations, so we can think about it, huh? So let's see, first relation क्या है हमारा, let me copy it. पहला relation हमारा ये था, okay, this was my first relation. Let's remove this box. Then the rest of the 3 relations are these, okay, but we will see them later. तो पहला रिलेशन क्या बोल रहा है, डेल टी बाई डेल पी इक्वल्स डेल वी बाई डेल एस. So it tells us that increase of temperature per unit increase of pressure, ठीक है. ये LHS से साफ साफ हम देख सकते हैं कि this thing del T by del P, this is nothing but increase of temperature per unit increase of pressure in a reversible adiabatic process और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है. इज equal to the increase of volume per unit increase of entropy in an isobaric process, right? Because we don't know how to measure, how to get the reading for this delta S, for this increase in entropy, but we know the reading for delta T, delta P, and we can also design an adiabatic process. So if we know this thing, we can know this thing, but this was not directly measurable at the lab. So this is the benefit that we get from the
first relation. Similarly, we get second relation, and we will have the same similar interpretation the way we have interpreted the first relation. So del T by del V at constant entropy is equal to minus del P by del S at constant volume. So can you think about it, what it is saying? It states that increase of temperature per unit increase of volume in an isothermal process, sorry, in an not isothermal, because this thing is constant na, entropy is constant, so process is adiabatic process is equal to, I can copy this thing here, is equal to, but now remember the negative sign is there, so it will be decrease of RHS is negative sign, so that's why it is rate is negative, so it means it is decreasing, decrease of pressure per unit increase of entropy in an isochoric process. So this negative sign has some value, हाँ, ये negative sign ऐसे नहीं है, मैथ्स ऑलवेज इट टीचेज समथिंग अबाउट फिजिक्स. तो अगर इसका मीनिंग ये है, नेगेटिव साइन का मीनिंग ये है कि अगर तुम ds को बढ़ाओगे, यानी कि एंट्रोपी को जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी में चेंज होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर में चेंज होगा. अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा. तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन. और ये तो पूरा हमें आई मीन डिफरेंशिएशन से ही, हम जब उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन का इन योर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लासेस में +2, तो हमें पता होता है कि डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है. ओके, so similarly for third and fourth relation you can write yourself. I can just tell it by my in words कि तीसरा relation क्या बोल रहा है. So del S by del V at constant temperature is equal to del P by del T at constant volume. It is saying that for any thermodynamic system. हाँ, अब ध्यान देना कि ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हुए हैं, ये हमारे पास एक ऐसे सिस्टम के लिए आए हुए हैं जो सिस्टम PVT पे काम करता है, और सिस्टम हमारा होमोजीनियस है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पे काम कर सकते हैं ये हमारे पास. सो दिस रिलेशन इज सेइंग दैट कि इंक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट इंक्रीज इन वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर इन आइसोकोरिक प्रोसेस. ये बोल रहा है ऐसा. यहाँ पर नेगेटिव साइन है, फोर्थ रिलेशन में नेगेटिव साइन है. So it is saying nothing but the this one is saying that the unit increase in entropy per unit increase in pressure at constant temperature is equal to decrease in volume in increase in per unit temperature at constant pressure or in isobaric process. ऐसे हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो या आई मीन either you can write it or you just because we have written two things already for two cases already, so I don't think it is much important to write, or you can write it in your words. बट समझना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर LHS को नापना मुश्किल था लैब में, यहाँ पर भी LHS को नापना मुश्किल था लैब में, लेकिन RHS को नाप सकते हैं लैब में, RHS को नाप सकते हैं लैब में.
यहाँ पर LHS को नाप सकते हैं लैब में, RHS को नहीं नाप सकते हैं लैब में। यहाँ पर LHS को नाप सकते हैं लैब में, RHS को नहीं नाप सकते हैं लैब में। ओके, मेजरमेंट एक जगह पॉसिबल है, दूसरी जगह पॉसिबल नहीं है। फाइन। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई वांटेड टू शो यू कि जो ये पांचवा और छठा रिलेशन आया, क्या इसका कोई इस्तेमाल है? कैन वी यूज इट समवेयर? इज देयर एनी वे टू यूज इट? यस। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज वी हैव यूज दिस थिंग बिफोर, दैट CP minus CV equals NR, राइट, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, जहाँ पर CP क्या है हमारा? CP is nothing but delta Q by delta T at constant pressure, एंड डेल्टा Q को हम क्या लिख सकते हैं? T del S by del T। हाँ, और T को हम बाहर ले सकते हैं ऐसे, क्योंकि देखो वी नो दैट डेल्टा Q इक्वल टू TdS, बट यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है तो वी कैन डू इट इन दिस वे, और T को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि T डिफ्रेंशिएशन से बाहर है, तो ये ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली CV इज नथिंग बट I know, you know, this definition is already know. The at constant volume here, so it looks like this. So ये हमारी CP और CV की definitions थी, right? Okay, fine. Now this CP minus CV equal to NR, where N is the number of moles in the gas and R is the gas constant. This is valid for ideal gas. So using the either fifth or sixth, both relation will give the same result. Using okay, let me write in words. Using sixth or 7, we can derive the general result for CP minus CV, expression of CP minus CV. Okay, so let's see how. First of all, what is the relation saying? Fourth, let's take fourth one. Fourth one क्या बोलना चाह रहा है? Fourth one saying is this. Okay, good. क्योंकि हमें क्या चाहिए, मतलब डेरिवेशन को थोड़ा सा याद करने का तरीका या फिर समझने का तरीका कि कैसे लोगों ने सोचा होगा। वी वॉन्ट डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, है ना। हमारे पास डेल एस बाई डेल वी है, डेल एस बाई डेल पी है, बट हमें चाहिए डेल एस बाई डेल टी, क्योंकि और कहीं पर तो टी है, एस है नहीं, एस का डिफ्रेंशिएशन कहीं पर है नहीं, तो बस हम टी का डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं, टी के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं। तो पहला फैक्टर तो ऐसे रहेगा, बट जो डेल एस बाई डेल वी है, यू कैन राइट इट एट डेल एस बाई डेल टी देन डेल टी बाई डेल वी, चेन रूल। सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी यू कैन डू द सेम प्रैक्टिस, you can do the same exercise, sorry, del s by del t by del p at constant volume is equal to 1. Okay, now you can split this differentiation into two part like this, del s by del t at constant pressure, del t by del v, this is also at constant pressure, और बाकी तो ऐसे रहेगा। And similarly here, okay, here also you can split these two things. Okay, if you see now, ये और ये यहाँ पे भी हैं common factors, तो we can take these two things as common.
sorry, like this. Okay, so we are left with now del S by del T at constant pressure minus del S by del T at constant volume. This is equal to 1. But heat capacity जो Cp है, हीट कैपेसिटी जो है वो तो टी डेल एस बाई डेल टी होती है ना, बट यहाँ पर हमारे पास डेल एस बाई डेल टी ही है सिंपल. सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ टी. वो तो कर ही सकते हैं ना, मल्टीप्लाई both sides with t. So if you multiply both sides with t, so we will get simply this thing, this, और ये 1t बन जाएगा. Now if you take this t inside, तो ये यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा. Okay, so this will become in this thing, this will become like this. Now this has become Cp, this has become Cv. I think you are convinced, right? हमने ऐसे ही देखा था इसका डेफिनेशन. तो we can write it as Cp minus Cv. ओके, ये आ गया. और T ओके, यहाँ पर ये आएगा नहीं, फिट नहीं बैठेगा, बिकॉज दिस इज द एंडिंग ऑफ पेज. बट इन द नेक्स्ट step, what can we write? We can write that Cp minus Cv is nothing but T upon this factor, है ना. But we don't like to have derivatives in the denominator, right? तो यहाँ पर हम वही मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज में जो हमने यूज़ किया था, del t by del p is nothing but 1 upon del p by del t, ऐसे कर सकते हैं ना. Also del t by del v at constant pressure is nothing but 1 upon del v by del t constant pressure. तो अगर तू इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में नाउ. सो इट विल बिकम t टाइम्स del p by del t at constant volume into del v by del t at constant pressure. So this is what we have a general expression for Cp minus Cv, and it is valid for any gas. It doesn't has to be real gas, sorry, ideal gas. So let's verify, verify for ideal gas. If you verify it for ideal gas, since ideal gas follow this thing, PV equal to nRT, so P equal to nRT by V. Okay, so you want in LHS del P by del T at constant volume. So del P by del T at constant volume is nothing but nRT. Also you want del V by del T, so from here V equals nRT by P. It also del V by del T at constant pressure is nothing but nRT again. Fine, sorry, nr, not nr, what I am doing, man, nr by V, nr by P, this thing. Okay, so Cp minus Cv is nothing but plug these things here, nr by V, nr by P. Okay, so this is nothing but nRT by PV times nr, or we know that for ideal gas PV equal to nRT, so these two terms cancelled out. So Cp minus Cv is nothing but nr, so it works for this thing. Okay,
you can use this thing and this expression for calculation of this Cp minus Cv for uh, van der Waal gas, for instance. So but that is not required for you, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आता है. बट इतना याद रखना हमेशा कि Cp for ideal gas, that Cp minus Cv that is an R for ideal gas, but this is great bigger or larger, this value is larger, some let's call alpha is some constant, positive constant. So for real gas मतलब Cp minus Cv की वैल्यू बड़ी होती है इफ़ यू कंपेयर दिस सेम वैल्यू फॉर आइडियल गैस. इतना याद रखना कम से कम. Okay. Fine. So these are the this is one of the implication or one of the utilization of the fifth and sixth. And if you do the same practice for sixth Maxwell relation, you will arrive at the same location, same result. One more thing I want to remind you, or I want to insist here, that the same thermodynamic relations, है ना, Maxwell relations, in fact, all the four Maxwell relations can be derived from the thermodynamic potentials also. But this is the fundamental method. But the thing is that when we will read the thermodynamic potential, there also I can show you how to derive the Maxwell relation, and that is very quick method to see what is the Maxwell relation. But this thing whatever I have derived or I have done today in this lecture, it was also important to understand, because a lot of mathematical complications or mathematical learnings were there. Okay, so I hope this is all in the thermodynamic relations. In the next we will see more applications of this thermodynamic relation. By the way, this is one of the application or one of the implication, I would say, that we can get the value of Cp minus Cv for any real gas that is under PVT system. Okay, fine. Let's see in the next